Dear friends, welcome to the Sufi Farm channel. I am Dr. Sufyan Ahmed, HOD of Pharmacognosy. In this video, we'll discuss about the industrial production, estimation and utilization of podophyllitoxin. So, in this video, we'll discuss about the drug which contain the podophyllitoxin constituents and the podophyllitoxin is generally it is obtained from the drug that is the Indian podophyllum. We'll discuss about the its biological source, morphology, chemical constituents and different method of extraction, means that is the industrial production, different method of extraction and isolation, and also discuss about the estimation by using the chromatography, and also discuss the utilization of podophyllitoxin, and we'll see also the marketed preparation of podophyllitoxin. So now let's start the podophyllitoxin. The podophyllitoxin is obtained from Indian podophyllum plant and its synonym is Himalayan mayapple, and you can see in this diagram that is the Indian podophyllum, that leaves is there, and the biological source, the podophyllitoxin is a resin obtained from the rhizome and root of podophyllum hexandromer and the podophyllum imodi, family Barbidraceae. Geographical source, it grew in the forest of Himalayas from Kashmir to Sikkim in Himachal Pradesh and the part of UP. Plant habitat, the podophyllum hexandrum is succulent erect herb, glabrous up to the 30 centimeter tall with the stripping long rhizome, stem, one or two simple leafy without the tops. Method of cultivation, it is generally cultivated by using the seed propagation and root stocks. तो पोडोफाइलोटॉक्सिन जो है ये इंडियन पोडोफाइलम से उसको जो है ऑब्टेन किया जाता है, उसके जो है डिफरेंट जो है बायोलॉजिकल सोर्स है, ये रूट और राइजोम से जो है ऑब्टेन करते हैं, तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स जो है वो पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम है, और यहाँ पर जो है ये जनरली जो है वो फॉरेस्ट कहाँ पर ग्रो होता है, फॉरेस्ट ऑफ हिमालयास फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम के अंदर जो है वो जनरली ऑब्टेन किया जाता है और कल्टीवेट किया जाता है. उसकी हैबिटेट क्या है, इट इज इरेक्ट हर्ब ग्लैब्रस अप टू 30 सेंटीमीटर टॉल विथ क्रीपिंग लॉन्ग राइजोम्स, और मेथड ऑफ कल्टीवेशन क्या है, उसको सीड से जो है जनरली प्रोपगेट किया जाता है एंड ऑल्सो प्रोपगेटेड बाय द रूट स्टॉक्स. Macroscopy, so leaves alternate palmate up to 25 centimeter in diameter, deeply divided in 3 to 5 lobes, tooth copper spotted. The flower are white to pinkish in the color. 4 centimeter across appear in the fork of stem. The sepals are 3 in number and petaloids. The stamen are usually 6 and the fruits are wide, pulpy, 5 centimeter long and scarlet when ripe. Chemical constituent, the rhizome and root contain resinous mixture called the podophyllum resin or podophyllin. तो ये जो है रूट और राइजोम के अंदर जो है वो रेजिनस मिक्सचर, वो इट इज अ रेजिन्स. पोडोफाइलम क्या है, इट इज अ रेजिन्स. तो ये जो है उसको जो है क्या बोलते हैं, पोडोफाइलम रेजिन भी बोलते हैं एंड पोडोफाइलिन भी बोलते हैं. एंड द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट आर लिग्निन, ग्लाइकोसाइड एंड पोडोफाइलोटॉक्सिन, पाइडोफाइलिक एसिड एंड पिक्रोपोडोफाइलिन and alpha, platin,
पिटैलिन एंड बीटा पिटैलिन। एंड द राइजोम ऑल्सो कंटेन गम, उसके अंदर जो है राइजोम्स के अंदर गम, स्टार्च, अल्बुमिन, गैलिक एसिड एंड कैल्शियम ऑक्सिलेट, लिग्निन, फ्लेवोनॉन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। This is the chemical structure of podophyllatoxin, alpha pilatin and beta piltanin. Method of extraction. Extraction, that is the extraction and isolation method. Intent: extract 150 gram root with methanol 300 ml in Soxhlet apparatus, filter and concentrate। तो यहाँ पर जो है रूट जो है कोर्स पाउडर ले लेते और उसको जो है वो सॉक्सलेट एपरेटस के अंदर 120 ग्राम जो है रूट कोर्स पाउडर लेके सॉक्सलेट एपरेटस में उसको लोड करते और उसमें जो है मीथेनॉल एज अ सॉल्वेंट यूज करते। एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद उसको फिल्टर करते, कॉन्सेंट्रेट करते। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद ऐड 200 ml एसिडिफाइड वाटर उसके अंदर ऐड करते हैं। 200 ml वाटर एंड 2 ml HCl ऐड करते हैं। एसिडिफाइड वाटर इस तरीके से बनाते हैं और उसके जो है ऐड करने के बाद उसको कूल कर लेते हैं। अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर 2 hours। उसको जो है मिक्सचर को जो है क्या करते हैं वो 2 घंटे के लिए रख देते हैं। तो उसमें जो है क्या होती है, पीपीटी जो है वो फॉर्म होती है, पीपीटी फॉर्म होती है। फिल्टर अंडर दी वैक्यूम, फिर उसके बाद उसको फिल्टर करते हैं अंडर दी वैक्यूम एंड फिल्ट्रेट वॉश विद दी एसिडिफाइड वाटर, देन द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। Filter and dissolve residue in the sufficient quantity of hot alcohol 90%, filter and evaporate to dryness। तो यहाँ पर जो है फिर से उसको जो है एसिडिफाइड वाटर से जो उसको क्या करते हैं वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद पीपीटी फॉर्म होती, फिर से फिल्टर एंड डिजॉल्व रेसिड्यू इन द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ हॉट अल्कोहल। उसके बाद उसको फिर से क्या करते हैं, रेसिड्यू जो रहता है उसको सफिशिएंट क्वांटिटी उसके अंदर जो है अल्कोहल की ऐड करते हैं 90%। फिर उसके बाद में उसको फिल्टर करते हैं एंड इवापोरेट टू ड्राइनेस, दैट इज दी रिक्रिस्टलाइज द रेसिड्यू इन बेंजीन टू गेट दी। उसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं द रेसिड्यू इन बेंजीन टू गेट पोडोफाइलोटॉक्सिन। सो दैट इज द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड। एंड नाउ सी द सेकंड मेथड। In that, first extract 4 kg root by the stirring and heating with ethanol 40 ml for about 10 minutes। तो यहाँ पर जो 4 kg जो है वो रूट लेंगे कोर्स पाउडर और उसको स्टर करेंगे किसके साथ, इथेनॉल के साथ 10 मिनट के लिए। देन कूल एंड फिल्टर द मिक्सचर, उसके बाद में उसको फिल्टर करेंगे एंड देन री एक्सट्रैक्ट द रेसिड्यू विथ फर्दर 100 ml ऑफ इथेनॉल। उसके बाद फिर से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे किसके साथ में, इथेनॉल के साथ एंड कंबाइन द एक्सट्रैक्ट एंड इवापोरेट टू अबाउट 20 ml। तो पहले के जैसे हमने ये किया, सबसे पहले रूट ली, रूट को हमने क्या किया, स्टरिंग कंटिन्यूअस किए, हीट किए इथेनॉल के साथ, उसको फिल्टर करें। फिल्टर करने के बाद में क्या किए, कूल किए, पहले फिल्टर किए, फिल्टर करने के बाद में उसको अलग साइड में निकाल लिए। फिर उसके बाद फिर से जो हमने प्लांट के अंदर जो क्या किया, रूट के अंदर हमने उसको फिर से री एक्सट्रैक्ट किया, री एक्सट्रैक्ट दी रेसिड्यू, जो रेसिड्यू था उसको फिर से री एक्सट्रैक्ट किए 100 ml इथेनॉल के साथ। अब पहले वाला जो इथेनॉल था वो और अभी जो हमारे को ऑब्टेन हुआ वो दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे एंड एक्सट्रैक्ट एंड इवापोरेट अबाउट टू, कितना इवापोरेट करना है, अप टू दी 20 ml एंड पोर द इथेनॉलिक सॉल्यूशन इनटू द वाटर 100 ml एंड एक्सट्रैक्ट विथ इथिल एसीटेट। उसके बाद में उसको क्या करना है, पोर द इथेनॉल सॉल्यूशन इनटू वाटर एंड एक्सट्रैक्ट विद द इथिल एसीटेट। इथिल एसीटेट के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करना है 3/50 ml। मीन्स यहाँ पर उसको सेपरेटिंग फनेल में उसको डालेंगे और उसको जो है पहली बार इथिल एसीटेट के साथ एक्सट्रैक्ट किए, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे को 2 लेयर मिलेंगी। पहली लेयर को हमने क्या किया, उसको सेपरेट किया, फिर से उसके अंदर रिमेनिंग जो सॉल्यूशन है उसके अंदर फिर से हमने क्या किया, 50 ml इथिल एसीटेट ऐड किया, फिर से उसको शेक करेंगे, 2 लेयर मिलेंगे, वो लेयर को सेपरेट करेंगे। फिर थर्ड टाइम से यहाँ पर 3/50
50 दिए, तो तीसरी बार करेंगे तो 3 बार हमारे को जो है वो जो इथिल एसीटेट की लेयर हमारे को ऑब्टेन हुए, वो तीनों को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको कंबाइन करना है। कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद में उसको इवोपरेट टू ड्राइनेस एंड आइसोलेट द पोडोफाइलोटॉक्सिन बाय द प्रिपरेटिव टीएलसी। तो कंबाइन करने के बाद इवोपरेट करेंगे और उसको आइसोलेट करेंगे, किसमें, आइसोलेट द पोडोफाइलोटॉक्सिन बाय द प्रिपरेटिव टीएलसी के ऊपर हम उसको आइसोलेट करेंगे एंड रिक्रिस्टलाइज द प्रोडक्ट फ्रॉम इथेनॉल अलाइन टू क्रिस्टलाइज एट 0 डिग्री C फॉर द सेवरल डेज। सो ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन मेथड। नाउ सी द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। Treat the podophyllotoxin with 50% sulfuric acid. It show the violet blue color. तो 50% इथेन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो ये जो है ब्लू वायलेट कलर हमारे को ऑब्टेन होता है। सेकंड केमिकल टेस्ट, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। मैसिरेट 0.5 ग्राम ऑफ द ड्रग विथ 10 ml अल्कोहल एंड फिल्टर 0.5 ग्राम ऑफ ड्रग। उसको किसके साथ, 10 ml अल्कोहल के साथ वो करेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे। टू फिल्ट्रेट ऐड, जो फिल्ट्रेट रहेगा उसके अंदर ऐड करेंगे 0.5 ml कॉपर एसीटेट। इट शो ब्राउन पीपीटी, तो वो हमारे को ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन होगी। एस्टिमेशन HPLC मेथड, कॉलम RP C18 यहाँ पर कॉलम यूज हो रहा है। वेवलेंथ 283 नैनोमीटर। मोबाइल फेज मिथेनॉल वाटर 60 to 40। फ्लोरेट 0.8 ml per minute। टाइम 30 minutes। So next is utilization. Rhizome are used to typhoid fever, jaundice, dysentery, chronic hepatitis, scapula, rheumatism, skin disease, tumors, growth, kidney and bladder problems. तो so many uses are there। तो इसको लिए जो है टाइफाइड के लिए यूज करते हैं, जॉन्डिस के लिए भी यूज करते हैं, हेपेटाइटिस के लिए, रूमेटिज्म, स्किन डिसीज, ट्यूमर्स एंड किडनी एंड ब्लैडर प्रॉब्लम्स के लिए जो इसको हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। एंड प्लांट इज ऑल्सो यूज फॉर द गोनोरिया एंड सिफाइलिस एंड इट इज ऑल्सो used as a purgative and also for the treatment of vaginal wart, and the two derivative of podophyllotoxin called ilipocyte and tenipocytes are employed for the treatment of cancer। तो जो उसके जो डेरिवेटिव है इलिपोसाइट एंड टेनोपोसाइट, उसको जो यूज करते हैं किसके लिए, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। द रूट पेस्ट इज अप्लाइड ऑन द अल्सर, अल्सर के लिए यूज करते हैं, एंड कट एंड वाउंड्स के लिए उसको यूज किया जाता है। सो यू कैन सी हियर द राइजोम, दैट इज द, इट इज यूज फॉर द लंग कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर्स के लिए जो उसका यूज किया जाता है। Marketed preparation, that is the marketed preparation which is available in the market, that is the podophyllum resins. Its combination is also present, the benzoin and aloe solution is there, and the that is the podophyllum resin, that is the available in the market. So thank you, this is my more video and you can search by my channel Sufi Farm Dr. Sufyan Ahmed, and thank you for watching this video. Please subscribe, like and share and press the bell like button. Never miss an update. And you can also visit my blog for easy to read the PPT or slide, www.drsufyan.blogspot.com and www.sufifarm.blogspot.com. Thank you.